डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के 20वें एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये मेरा एपिसोड उर्दू सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होगा। इससे शायद आगा खान और उनके मुरीद थोड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन उनको इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी उर्दू सीरीज़ का अंजाम है, मेरे काम का नहीं। मेरा काम जहाँ तक मेरी ज़िंदगी रहेगी वहाँ तक चलेगा। अभी तक हमने क्या बातें की है पिछले 19 एपिसोड्स में, वो मैं आपको आज उसकी समरी सुनाऊंगा। और उसके बाद में मैंने ये जो सफ़र रहा है मेरा 1 साल का, इसमें मैंने क्या देखा, क्या सीखा, और आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा, वो सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात इस बात की करेंगे कि अभी तक जो हमने कवर किया, वो पहली बात तो ये थी कि आगा खान साहब जो दावा करते थे कि भाई मैं आले रसूल हूँ, तो वो दावा तो ख़त्म हो गया, नस्तो नाबूद हो गया, क्योंकि हमने साबित करके दिखाया कि उनका रसूलुल्लाह की फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर है तो हम अब भी इंतज़ार कर रहे हैं आगा खान साहब का या फिर उनके सिस्टम का कि वो आकर हमको बताएं कि भाई उनका रिश्ता क्या है और कैसे है। दूसरी बात हमने जो बहुत ही अहम थी ये सीरीज़ में, वो ये की कि तकरीबन 1000 साल पहले जो ये इस्माइलीज़ हैं, इंडिया वाले, जो जिनको हम खोजा कहते हैं, उन्होंने इस्लाम से तलाक ले लिया। जब ईरान से, इजिप्ट से पीर आए इंडिया दावत करने के लिए, इस्माइली मज़हब की दावत करने के लिए, निज़ारी फ़िरके की दावत करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने ये हिंदुओं को कहा
کہ ہمارا امام جو ہے وہ بھگوان وشنو کا اوتار ہے. تو جہاں امام بھگوان بن جاتا ہے، اللہ بن جاتا ہے، وہاں اسلام ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی طے کیا اس سفر میں، ہم نے آغا خان جو امام ہیں نظاریوں کے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے وہ ہم نے دیکھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا جو ایک مرید ہے، ایک ایوریج مرید ہے، کہ اس مرید کا کیریکٹر اس کے امام سے کہیں اچھا ہے. کیونکہ کوئی بھی آغا خانی فیملی مجھے آپ لا کے دکھاؤ، ایک بھی فیملی دکھاؤ کہ جس کے اندر اتنے سارے طلاق ہوئے ہیں، اور طلاق کی وجہ عورت، اماموں کے ناجائز تعلق. سلطان ہم کو دوسرے اماموں کا تو کچھ اتنا نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس زمانے میں شاید یہ بات، کیونکہ پریس بھی نہیں تھی، میڈیا نہیں تھی، تو ہم کو اتنا نہیں پتا چلتا تھا. لیکن سلطان محمد شاہ کے ٹائم سے میڈیا کافی ہے، اور آج تو کافی بڑھ گئی ہے. تو سلطان محمد شاہ نے جو ہے کہ 4 شادیاں کی ہے نا. ایک تو جب ان کی جو انڈین بیوی تھی شہزادی، اس کے ہوتے ہوئے تیریسا میگلیانو سے انہوں نے ناجائز رشتہ جوڑا، جس سے ان کو 2 بیٹے پیدا ہوئے ہے نا. اس کے بعد میں انہوں نے پھر شہزادی کی موت کے بعد میں پھر ایک شادی کی، اور اونڈرے کیرون سے اونڈرے کو بھی طلاق دے دی. اور اونڈرے کی طلاق کے بعد انہوں نے ایک مس فرانس سے شادی کی ہے نا. اور اس کے بعد جو علی خان جو سلطان محمد شاہ کے بیٹے تھے، انہوں نے تو ریکارڈ قائم کر دیا بے شرمی کا، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقوں کا. اور اس کی نشانی جو ہے کریم آغا خان، آج ان کی ناجائز اولاد ہے. کیونکہ جب کریم آغا خان کا آغاز ہوا رٹس ہوٹل لندن میں، یہ دونوں کے ملن سے ہوا. تاج الدولہ کے جو جوان گینیس تھی، جوان اور علی خان کا جو تعلق ہوا جسمانی لندن کی رٹس ہوٹل میں، تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس واقعے کے 7 مہینے بعد کریم آغا خان پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کا کیریکٹر دیکھا، لیکن وہ تو اللہ ہے بھائی، وہ تو زمین پہ پاک صاف روح لے کے آئے ہوئے ہیں. اور کچھ پاگلوں کو، جو ان میں سے ایک پاگل میں بھی تھا، کہ ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلو یہ ہم نے طے کیا. اس کے بعد میں ہم نے جو AKDN، جو وہ کہتے تھے نا کہ بھائی ہمارا مولا جو ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ ہم نے وہ آئیڈیا کو ختم کر دیا. غریبوں کی مدد تو وہ نہیں کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو ہے وہ فور پروفٹ ایجنسی ہے، کوئی غریبوں کی خدمت کا ادارہ نہیں ہے نا. یہ ساری بات بھی ہم نے کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی کی کہ ایسا پاگل پن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کے پاس عقل نہیں ہے؟ تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے عقل پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے. کوئی بھی ڈال سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی ڈال سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہ کہیں نہ کہیں ہم سب اسے افیکٹڈ ہیں، اسے متاثر ہیں. ریلیجن ہو، کلٹ ہو، گورنمنٹس ہو، کوپریشنز ہو، ان ساروں نے ہم کو بڑا لوٹا ہے. تو یہ ساری باتیں بھی ہم نے کی تھی. اب دوسری بات ہم کو آج یہ کرنی ہے کہ میری انگلش سیریز کا انجام ہو گیا، میری اردو سیریز بھی آج
अंजाम को पहुंचेगी। तो अब जो है 2022 से लेकर आगे जितनी भी मेरी ज़िंदगी है, तो उसमें क्या मैंने सोच के रखा है, तो उसकी कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो काफ़ी फरमाइशें आई है कि जो ये सीरीज़ बनी है उसको एक कंसोलिडेटेड वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो ड्यूरेशन में छोटी होगी। अब अगर आप ये 20 एपिसोड्स को देखोगे तो शायद 10-12 घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो उनका ये कहना है कि ये इसको सब कंसोलिडेट करके एक छोटी वीडियो बनाई जाए और उसको जो है कि एक मेमोरेबिलिया की तरह घर में रखा जाए, ताकि आने वाली जनरेशन भी जो है कि उसको ये एक वीडियो को आसानी से देख सके। हालांकि इसमें काम बहुत है, लेकिन ये मेरी कोशिश रहेगी कि वो वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं। दूसरा कि आइंदा हम जो वीडियोस बनाएंगे वो उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। जैसे आपने आज देखा कि एक कार्टून वीडियो था, तो आइंदा वीडियोस में या मेरे आइंदा काम में आप देखोगे कि थोड़ा कार्टून वीडियोस भी होगा, थोड़ा जो है बॉलीवुड फिल्म्स की क्लिप भी होगी, थोड़ा प्रोफेशनल बेसिस पे भी होगा। तो आपको जो आइंदा मेरा काम जो होगा वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाता हुआ दिखेगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो आपको मालूम है अच्छी तरह कि जब मैंने ये शुरू किया था और अब भी जो है मैं बड़ा अनप्रोफेशनल बेसिस पे ये फिल्म की शूटिंग करता हूँ। लेकिन जो भी हुआ है, आपने अल्लाह ताला का करम रहा है और आपका भी सपोर्ट रहा है, तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो अब ये इरादा है। दूसरा कि अब ये जो बात है मेरी वीडियो की, उससे मुझे पूरी दुनिया से ये खबर आ रही है कि काफ़ी लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं, स्माइलीज भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, कुछ लोग जमात खाना छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ अब नहीं दे रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। दूसरी बात ये है कि हमारा ये भी इरादा है कि हम एक्सपर्ट्स की राय लें। अभी तक मैंने जो भी पेश किया वो मेरे हिसाब से था, लेकिन मेरी बात को वैलिडेट करने के लिए या गलत साबित करने के लिए मैं चाहता हूं कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, वो मेरे चैनल पे आए और मुझे बताएं कि मेरा जो अधूरा इल्म है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, ताकि मैं आइंदा जो भी काम करूं उससे मुझे मदद मिले। तो कैसे लोगों की बात मैं कर रहा हूं कि जैसे साइकोलॉजिस्ट है, मान लो कि उनसे ये सवाल मैंने बात की कि भाई कैसे अकल पे पर्दा डाला जा सकता है, तो साइकोलॉजिस्ट आके बताएंगे हमको कि भाई ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को आगा खानी कहते हैं या दूसरे कल्ट्स में जो लोग हैं, वो उनकी अकल पे कैसे पर्दा पड़ जाता है, कैसे वो नहीं देख सकते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, और अगर देख भी सकते हैं तो उनकी दूसरी क्या मोटिवेशंस होती है कि जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इतनी जो बेबसी है, वो बेबसी के वजूहात क्या है, वो हम उनसे, साइकोलॉजिस्ट से या जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो दिमाग के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे हम उनका नॉलेज लेंगे। कुछ नॉलेज हम इस्लाम के बारे में जो हमारे उलेमा हैं उनसे लेंगे। हम इस्माइलियों से भी लेना चाहते थे, बल्कि हम फॉर्मल इनविटेशन भेजेंगे। मैंने, अब आपको मालूम है, एक आदमी, उसका नाम है खलील अंदानी,
और सॉरी, अब माफ़ करना, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, पीएचडी खलील अंसारी, क्योंकि वो साहब जो है उन्होंने पीएचडी की है और वो उस पीएचडी पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और अपने हर बात में वो पीएचडी को डालते हैं, तो मुझे भी उनको पीएचडी बोलना चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, सॉरी, यूट्यूब पे कांटेक्ट किया था या टेक्स्ट पे किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरी वीडियोस में वो गलत है, सब कुछ। तो मैंने उनको बोला बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं गलत हूं, आप तो सही हो ना, आप आओ बोलो। वो आदमी गायब हो गया और अभी भी वो पीएचडी है, इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको फॉर्मल इनविटेशंस भेजेंगे। हमको मालूम है वो नहीं आएंगे, हमको मालूम है, लेकिन हमारा ये फर्ज होता है कि हम उनको दावत दें, हम इस्माइलियों को दावत दें। जो जमात है वो क्या सोचते हैं, तो हम ये काम इंशाल्लाह 2022 में करेंगे। और एक आदमी मुझे याद आ रहा है जिसका नाम है कमालुद्दीन मिशनरी। जैसे खलील अंसारी पीएचडी वो नए ज़माने का स्कॉलर है, उसी तरह से कमालुद्दीन जो है वो पुराने ज़माने का स्कॉलर है। तो वैसे तो बहुत सारे दूसरे स्कॉलर हुए, लेकिन कोई बड़ा नाम अब जिंदा नहीं है, पुराने वाले सारे गुजर चुके। एक कमालुद्दीन अभी अभी है, तो उनको भी हम भेजेंगे इनविटेशन। बल्कि मेरे एक रिलेटिव ने मुझे ये कहा था कि सलीम, जो वो रिलेटिव मुझसे बहुत खुश नहीं है कि मैं ये करता हूँ ये काम, तो मैंने उनको बोला मैं जो भी बोलता हूँ मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम एक दफ़ा कमालुद्दीन से भी पूछ के देखो। तो मैंने बोला भाई मैं कैसे मैंने जब मेरी वीडियोस में सबको इनविटेशन दी है, एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा मैंने इनविटेशन दी है कि भाई आगा खान साहब आप आइए, कुछ तो जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए। आपके स्कॉलरों को मैं बुलाता हूँ, आपकी जमात को बुलाता हूँ, कोई तो आओ। न कमालुद्दीन आया, न हमारे पीएचडी साहब आए, कोई भी नहीं आया। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम उनको इनविटेशन भेजेंगे फॉर्मल बेसिस पे, और फिर हम देखेंगे कि कितनी सच्ची बात वो करते हैं, वो आते भी हैं कि नहीं। और अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि उनका कहना क्या है। हमको ये मालूम है कि बंद दरवाजे के पीछे वो बहुत बोलते हैं। कमालुद्दीन साहब जो हैं बंद दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं वो तो बकवास सबको मालूम है। कोई भी एक लेवल हेडेड इंसान को उनकी तकरीर सुनाओ आप, अगर उसका दिमाग घूम ना जाए तो आप मुझे बताना। बहुत बोलते हैं दरवाजे के पीछे, लेकिन दरवाजे के आगे आने की हिम्मत नहीं है। कैसे आएंगे? नहीं आ सकते ना, मजबूरी है। जो झूठा होता है वो थोड़ी आता है सामने, है ना। लेकिन शायद मैं गलत हूं, शायद वो झूठे नहीं है, शायद मेरी दावत को वो कबूल कर ले, वक्त ही बताएगा। इसके अलावा मैं कोशिश ये करूंगा कि 2022 में जो मैंने बुक का वादा किया था आपको कि मेरी किताब तकरीबन तैयार है, वो बुक हम 2022 में उसको पब्लिश करेंगे। उसके अलावा एक और फरमाइश आई है, बल्कि काफ़ी लोगों से ये फरमाइश आई है, जो खुले दिमाग के लोग हैं उनसे ये फरमाइश आई है, अगर ये सब तुम जो बोल रहे हो अगर ये हम छोड़ दें तो फिर जाएं कहाँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ये कभी भी किसी को नहीं कहा है कि आप इस्लाम को छोड़ दो, या आप अगर आगा खानी हो तो आप आगा खानी को छोड़ दो, मैंने ये कभी नहीं कहा है। हाँ, ये मैंने कहा है
कि मैं किसी फेथ बेस्ड सिस्टम को नहीं मानता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तो काफी लोगों ने जो है मुझे ये सवाल किया है कि भाई आप फेथ बेस्ड सिस्टम नहीं मानते हो, इस्लाम को नहीं मानते हो, आगा खानी को नहीं मानते हो, हिंदू को नहीं मानते हो, क्रिश्चियन को नहीं मानते हो, तो क्या मानते हो? तो मैंने उनको यही कहा है सिंपल कि भाई मैं मानता कुछ भी नहीं हूं, मैं जानने की कोशिश करता हूं। जो हमको किसी ने कहा है वो मैं कैसे मान लूं, है ना? मैं नहीं मानता। आपको मानना है, उसमें मैं आपके बीच में नहीं आता हूं। मैं जो जानता हूं वो मैं जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि ये दुनिया में बहुत दुख तकलीफ है। आगा खानी मुरीद भी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, और मैं उनकी दुख तकलीफ को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये बात को मैं जानता हूं। तो मानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मेरे ये काम में जो मैंने किया, उसमें मुझे जो भी ताकत है, जिसको अल्लाह हम कहते हैं, गॉड, भगवान, जो भी है, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मदद की है, मेरा सहारा बना है वो। वरना इतना मामूली आदमी वो कैसे इतना काम कर सकता है? तो सवाल उनका ये था कि भाई फेथ बेस्ड सिस्टम में, ईमान वाली सिस्टम में आप नहीं मानते हो, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो ऐसे लोगों के लिए कि जिनको ये जानना है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो उसके लिए मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूं। और वो सीरीज जो है कि उसमें क्या होगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मजहब है वो कहां से शुरू हुआ, है ना? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहां से शुरू हुआ, है ना? सबसे पहले हिंदुइज्म, उसके बाद में इब्राहिमिक रिलीजन्स आए सारे, जो रसूलुल्लाह पे जाके ख़त्म हुए, है ना? तो उसके अलावा दूसरे दूसरे ट्रेडिशन हुए, उसके अलावा कितने मजहब जो है कि वो आए और गए। तो ये सारे फेथ बेस्ड सिस्टम वाले हैं, है ना? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम वगैरह, सिख वगैरह, ये सब फेथ बेस में आते हैं। नॉन फेथ बेस में जो ईमान को नहीं मानते, कि ईमान का मतलब क्या? मान लेना कोई बात को, वो उसको नहीं मानते। वो क्या करते हैं कि वो ढूंढते हैं, अल्लाह को अपने अंदर ढूंढते हैं, है ना? क्योंकि इवन रिलीजियस बुक्स में कभी कभी ये लिखा है, किताबों में, कि भाई अल्लाह आपसे बहुत करीब है, आप जितना, बल्कि कुरान शरीफ में लिखा है, मुझे सही से याद है, कि बहुत ही करीब है आपके, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो। तो वो कहाँ है, क्या है, वो उसको ढूंढना, वो एक ऑल्टरनेटिव है, और उसको स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं, है ना? तो जैसे एक मिसाल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कि आपके पास कोई आए और आपको ये बोले कि सलीम, एक खजाना है, बहुत ही बड़ा खजाना है, जवेरात, पैसे, दागिने, प्रेशियस स्टोन्स, बहुत ही बड़ा खजाना है। तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा, आप बताइए मुझे? कहाँ है भाई? तो वो बोलेगा कि देखो, ये गली आपको जो नजर आती ना, सीधा सीधा चले जाओ, उसके बाद में लेफ्ट मार देना, उसके बाद में राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर आखिरी जो राइट मारोगे ना, वहां पर एक पेड़ आपको नजर आएगा। वो पेड़ के नीचे खोदो आप, तो आपको वो खजाना मिलेगा। अब मैं जो है बड़ा आलसी आदमी हूं, मैंने मान लिया,
वो खजाना वहां पड़ा हुआ है और मैं यहां बैठा हूं। मैंने मान लिया कि वो खजाना है और उस खजाने की मैंने परस्तिश शुरू कर दी। ये हो गया फेथ बेस्ड सिस्टम। जीसस क्राइस्ट कहां है? भगवान कहां है? अल्लाह कहां है? हमको नहीं मालूम है। हमने मान लिया वो खजाना है, मान लिया, उसमें हम खुश हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वहां तक पहुंचना है, उसके साथ रहना है, उसके अंदर एक हो जाना है। उस तलाश को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो वो एक ऑल्टरनेटिव है। अब ये ऑल्टरनेटिव जो है वो आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप आगा खानी हो, आप वहीं पर रहो अगर आप खुश हो। लेकिन अगर आपकी, क्योंकि आपने मुझे पूछा है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो उन लोगों के लिए ये सीरीज बनेगी कि जहां पर आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको वो खजाने को ढूंढना है और पाना है या फिर आपको मानना है। उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूं कि न ढूंढने वाला और न मानने वाला बुरा है, सब अच्छे हैं और सब बुरे भी हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या है। हम अगर जमात खाने में जाकर तस्बीह निकालते हैं तो क्या हम अच्छे हो गए? हमारे अमल का कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। जो लोग मजहब में नहीं मानते हैं वो भी तो अच्छे लोग हैं ना। जो स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं मानते हैं वो मुसलमान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। मजहब का होना न होना इससे फर्क नहीं पड़ता है इंसान की इंसानियत के ऊपर। तो ऐसी भी एक सीरीज मैं बनाऊंगा कि जहां पर आपको मजहब का सही से नॉलेज मिलेगा और उसका ऑल्टरनेटिव भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक वादा मैं करता हूं कि मैं कभी भी मरते दम तक मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप अपना मजहब छोड़ के यहां आ जाओ। नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही काफी। आप अपना ख्याल रखना और मैं आपको मिलूंगा दूसरी वीडियोस के साथ कि जो कभी इंग्लिश में होगी, कभी उर्दू में होगी और कभी पश्तो में भी होगी।